Hello everyone. So now let's continue with the topic which we have started in the last class, that is measurement of physical properties. Okay. So whenever any physical property we are going to measure, it is always associated with two parameters. One is its quantity and the second one is its unit. So we've talked about quantitative part in detail in the last talk. Now the second one is its unit. So we'll talk about the unit system in this lecture. Unit system. So suppose you want to measure mass of something or the capacity of something, and suppose you want to use X unit, I want to use Y unit, and they are irrelevant to each other, then it can create some problems. So to avoid that, an international unit system is being set up where all need to follow that, right? So in unit system, first thing is SI system, International System of Units. Okay, units है क्या basically? When I say capacity, it would always be in liter or milliliter. When I say temperature, would be either in degree Celsius or Kelvin or Fahrenheit. ये सारी की सारी चीज़ें इनकी क्या है? यूनिट्स हैं. तो SI सिस्टम डिज़ाइन किया गया. इनिशियली यूनिट सिस्टम के लिए 3 बेसिक यूनिट्स इन्होंने डिसाइड किया जिनको हम किसी और से डेराइव नहीं कर सकते थे. So initially there were only 3 basic unit systems, units for 3 parameters, and they are length for mass it was kilogram for mass, it was kilogram or gram. The second one was meter for length or distance, and the third one was second for time. And later on they've thought that rest of the units can further be derived from these units. So these are the basic units which cannot be derived from something else, but rest of the units can be derived from them. ये उस टाइम पे thought process था. But later on they have realized, for example, आपसे कोई पूछे velocity का unit क्या है, तो velocity क्या होता है? It's distance upon time. Distance upon time. तो distance का unit क्या आ गया बेटा? मीटर. और टाइम का यूनिट क्या आ गया? सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड आ गया है, ठीक है. बट और बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिनका यूनिट हम डायरेक्टली यहाँ से मेज़र नहीं कर सकते हैं. अगर मैं कहूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, राइट. अगर हमें सपोज करिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जहाँ पे हमें ल्यूमिनेस इंटेंसिटी या इस तरीके की चीज़ें मेज़र करनी है, तो वहाँ पे इन 3 यूनिट से काम नहीं चलेगा. तो उसके लिए तो लेटर ऑन डिसाइडेड दैट देयर वुड बी 7 बेसिक यूनिट सिस्टम्स. 7 बेसिक यूनिट सिस्टम्स. और वो 7 बेसिक यूनिट सिस्टम्स क्या हैं? मैं इधर लिखती हूँ पैरामीटर और द प्रॉपर्टी, देन इट्स यूनिट एंड द सिंबल ऑफ द यूनिट. तो फर्स्ट था वही मास. मास के लिए क्या यूज़ किया इन्होंने? यूनिट इन्होंने यूज़ किया किलोग्राम, and the symbol was kg. K should always be small k. Second was time, unit was second और उसका symbol रहा इनका s. Third was length और distance, meter और symbol क्या रहा इसका? m. Then temperature, इसका Kelvin with K capital and symbol was capital K. Fifth था बेटा amount of the substance. देखिए हम जिन सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं वे टॉकिंग एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ें जब मेज़र करते हैं, लेट्स से हम मार्केट में गए, सेट ऑफ नोटबुक्स खरीद रहे हैं, बनानास खरीद रहे हैं, वी बाय देम इन डजन्स. तो ऐसे ही हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब किसी चीज़ के अमाउंट की बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट मोल. सो दिस इज मोल, जिसको हम डिटेल में इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं, एंड द सिंबल इज मोल. नेक्स्ट वन इज luminous intensity,
its unit is candela, symbol is CD, and the last one is current, electric current, its unit is ampere, and its symbol is capital A, right? So these are 7 fundamental units or basic units with the help of which rest of the parameters unit can easily be derived. Now how these 7 basic units are being defined, so that we've talked about, we'll be talking in this case. So these are basic 7 units: length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, unit of amount of the substance and the next one is luminous intensity. So these are the basic definitions, you can go through them. And then basic, because see, when I say speed of light, it's 1 meter per 3 into 10 to the power 8 meters per second, right? So this much distance is being covered in 1 second. Its exact value is 299792458. So this way time, unit of distance and time can be defined like the unit of what is 1 meter? The meter is the length of path travelled by light in vacuum during a time interval of this much second. This much of second means 1 of divided by this much of second. So this way these are standard definitions, you can go through them. Now we'll talk about the unit system, how they can be. There are different systems which describe the units. So unit systems, one is SI system, which is internationally accepted SI system. Then one is MKS system, and the second one is CGS system. MKS means M stands for meter, K stands for kilogram, S stands for second. In CGS system, C stands for centimeter, G stands for gram, and S stands for seconds. So these are the different symbols: MKS meter, kilogram, second, and CGS is centimeter, gram, and second. Now let me tell you, there are sub multiples, and there are some multiples whose values you should know. Like for example, when I say centimeter, so centi word is used before meter, so this is called a prefix. So there are some sub multiples and some prefixes whose value we should be aware of, prefixes, and I'll be writing their values this side. When somebody says deci, deci means its symbol is small d, 10 to the power minus 1. When somebody says centi, C, it's 10 to the power minus 2. Milli, small m, it's 10 to the power minus 3. When somebody says micro, this is the symbol, 10 to the power minus 6. Nano, N, 10 to the power minus 9. Then pico, 10 to the power minus 12. Femto, 10 to the power minus 15, and so on. So we should be aware of these prefixes. Then it comes kilo. Kilo means small k. It would be 10 to the power plus 6. When somebody says mega, mega means 10 to the power 6. If somebody says angstrom, so angstrom itself indicates 10 to the power minus 10 meter. So this angstrom, A having this type of symbol, so basically this is angstrom, and this angstrom clearly indicates 10 to the power minus 10 meters. So it itself includes the value 10 to the power minus 10 as well as meter. तो हमें ये prefixes की values पता होना चाहिए. For example, अगर कोई कहता है 1 meter is equals to 100 centimeter, 1 meter is equals to 100 centimeter. अब prefixes को देखिए कैसे ये हमारे लिए helpful है. If I say in this side, you can see that meter is there, in this side meter is also there. दोनों side में meter तो है, but meter में के साथ इस side लगा एक prefix centi, और centi का value हमें पता है कितना होता है. centi means 10 to the power minus 2. तो देखो यहाँ पे है ये 100, 100 का मतलब हुआ 10 to the power plus 2, और सेंटी का मतलब हुआ 10 to the power minus 2, और ये मीटर की जगह मीटर. तो दिस कम्स आउट टू बी 1 meter only. So 1 meter is equals to 100 centimeter is equals to 1 meter. They are one or same thing. Okay. If I ask you how many grams are there in 1 kilogram,
So when I say 1 kilogram, it would be 1000 gram. 1000 gram means 10 to the power 3 grams. Okay. Now let's go to this side. In both the sides, if you compare, this G is common, gram is common, right? So now this side, this is 1 kg. So K stands, kilo stands for 10 to the power 3. So this side we can write 1 into 10 to the power 3 gram, and this side also this is 10 to the power 3 grams. For kilo we have written 10 to the power plus 3. So this way you can compare that. These prefixes, if you are aware of their values, you can easily convert one unit into another unit. Now let's talk about some basic parameters or properties whose values are going to be very useful for us. So first let's start with length. I don't think there is any difficulty in converting one unit of length into another unit. So 1 meter is equals to how much centimeter? 100 centimeter is equals to 10 to the power minus 3 kilometer, or 1 kilometer is equals to 1000 meter. Then it comes time. For time, we all are aware that its SI unit is second. For length, its SI unit is meter. For time, its SI unit is second, right? 1 hour is equals to how many minutes? 60 minutes. And 1 minute is equals to 60 seconds. So it comes out to be 60 into 60 seconds. That is how many seconds? 3600 seconds. Then mass. For mass, we know that SI unit is kilogram. But kilogram can be converted into grams. So 1 kg is equals to 1000 gram. Then temperature. For temperature, it's going to be very useful for us, because whenever temperature is involved in any of the numericals, it should always be considered in Kelvin. टेम्परेचर का जो वैल्यू हम लेंगे वो किस यूनिट के साथ लेंगे? कैलकुलेशंस में केल्विन के साथ. ओके, सो केल्विन, देखो टेम्परेचर के 3 स्केल हैं. देयर आर 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. वन इज केल्विन स्केल, वन इज डिग्री सेल्सियस स्केल एंड वन इज डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल. ओके, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता है. तो केल्विन को अगर हम देखें तो केल्विन और डिग्री ये आपका है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर. इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर. मानी जब हम टेम्परेचर को यूज़ करेंगे कहीं पे भी विद वैल्यू, वी वुड ऑलवेज बी कंसीडरिंग विच स्केल? केल्विन स्केल. ओके, तो ये केल्विन स्केल है. बट सपोज यू आर गिवन विद टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो वी शुड नो द फॉर्मूले बाय विच वन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर. सो पहले हम देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस. विच वेरी सिंपल. रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस. तो इसमें क्या रहेगा? केल्विन इज इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू है, यू प्लेस दैट वैल्यू हियर प्लस 273. दिस वैल्यू, ये आपका फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने का. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर की बात करते हैं. रूम टेम्परेचर आपका कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस. नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस. अब कोई केल्विन में पूछे तो आप क्या करेंगे बेटा? इन केल्विन इट कम्स आउट टू बी, डिग्री सेल्सियस की जगह हमने रखा 25 प्लस क्या वैल्यू ऐड करेंगे? 273 एंड इट कम्स आउट टू बी 298 केल्विन. ओके, सो दिस इज द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, राइट? Now let's convert. Now the relationship between degree Celsius and degree Fahrenheit, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं. डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ओके, तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट और फ्रॉम डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस. जो भी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में उसको यहाँ प्लेस करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर में याद करें, जब भी हम फीवर चेक करते हैं तो हम घर में जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उसका स्केल आप कभी नोट करिएगा, दैट इज़ इन डिग्री फ़ारेनहाइट. और उस स्केल में जो हम नॉर्मली अपना बॉडी टेम्परेचर मानते हैं वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है. तो देखिए, अगर हम बात करें बॉडी टेम्परेचर की, तो बॉडी टेम्परेचर कितना होता है अपना बेटा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस,
तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह ये वैल्यू रखेंगे और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपके लिए अगेन दिस इज़ अ होमवर्क, आप इसको आज सॉल्व करेंगे कि बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना है डिग्री सेल्सियस में, राइट। एक और क्वेश्चन है आपका कि कन्वर्ट और फाइंड आउट, देखो हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट दीज टेम्परेचर्स इनटू डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस नॉट डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो ऐसे टेम्परेचर का ये स्केल है, 3 स्केल है। एब्सोल्यूट स्केल जिसमें हमें हमेशा वैल्यू मेजर करनी है वो केल्विन है। नाउ लेट्स गो टू वॉल्यूम। वॉल्यूम के भी क्या या कैपेसिटी जो मेजर करते हैं उसका यूनिट क्या होगा। वॉल्यूम का यूनिट आपका है लीटर्स। क्या है बेटा, लीटर्स। सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी, देखो वैसे इसका यूनिट है मीटर क्यूब, क्योंकि किसी भी चीज़ का हम वॉल्यूम ले रहे हैं तो मीन्स हैविंग 3 डायमेंशन, सो A इंटू E कम्स आउट टू बी A क्यूब। क्या आ जाएगा बेटा इसका आंसर, A क्यूब। तो वॉल्यूम का अगर हम देखें यूनिट क्या आ जाएगा आपका, मीटर क्यूब। तो लेकिन हम चेक करते हैं, जनरली हम वॉल्यूम मेजर करते हैं लीटर्स में। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ml, सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। और 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml के अलावा कितना, 1 ml इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, और जिसको हम 1 cc भी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। C स्टैंड्स फॉर क्यूबिक, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। तो यही हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर, सेम चीज़ है। तो 1000 ml कह दो या 1000 सेंटीमीटर क्यूब कह दो या 1000 cc कह दो, तो सेम चीज़ है। बट जब मीटर्स में कैलकुलेट करेंगे तो 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब आएगा ये, ठीक है बेटा। सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम के बाद है आपका प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट आपका क्या है, ये यूनिट सिस्टम बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे जब जब न्यूमेरिकल्स करेंगे या कोई भी काम होगा तो आपको यूनिट्स बार बार काम आएंगे। प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल। ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल, जिसका सिंबल है PA। अदर देन पास्कल देयर आर डिफरेंट अदर यूनिट्स ऑल्सो। प्रेशर की रिमेनिंग यूनिट्स क्या हैं, देखिए एटमॉस्फेयर इसका एक यूनिट है जिसका सिंबल है ATM। बार इसका एक यूनिट है जिसका सिंबल बार ही है, ठीक है। फिर उसके बाद टॉर इसका एक यूनिट है जिसका सिंबल टॉर ही है। फिर उसके बाद एक यूनिट है आपका ऑफ मिलीमीटर ऑफ HG। कभी कभी आपका रिपोर्टेड होता है डेटा सेंटीमीटर ऑफ HG। तो इनका रिलेशनशिप भी हमें पता होना चाहिए। देखो अगर हम कहें 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू हाउ मच बार, 1.01325 बार्स इज इक्वल्स टू हाउ मच पास्कल, 1.01325 into 10 to the power 5 Pascal is equals to how many torrs, 780 torr is equals to how much mm of mercury, 760 mm of mercury। ये 760 है, सॉरी बाय मिस्टेक आप written 780, 760 mm of mercury and in centimeter it comes out to be 76 centimeter of mercury। तो एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करते टाइम हमें बहुत ध्यान रखना है। ज़्यादातर आपका यूनिट क्या होगा, या तो ATM में होगा या बार में होगा, कई बार MM में भी होता है। तो हमें इनके रिलेशंस तो ज़रूरी पता हो। अगर ATM को बार में कन्वर्ट करना, ऑल्दो दे वेरी क्लोज टू ईच अदर, नॉट मच डिफरेंसेस देयर, बट स्टिल अगर बार को ATM में कन्वर्ट करना तो इट्स वेरी सिंपल। 1 बार इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ATM, 0 पॉइंट, देखो रिवर्स काउंटिंग 987 ATM। सिंपल है ना। 1 बार इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ATM, हाउ मच ATM, 0.987 ATM, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स जो आपको बार बार काम में आएंगे। अब एक यूनिट सिस्टम से हम दूसरे को डेराइव कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई पूछे डेंसिटी, डेंसिटी क्या है आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। डेंसिटी इज व्हाट बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास का यूनिट अगर हम इसमें लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, तो वॉल्यूम हमें किस में लेना पड़ेगा, ml में लेना पड़ेगा, ग्राम पर ml और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया आपका CGS सिस्टम में। MKS में मास को किस में लेंगे हम, किलोग्राम में, तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब,
ठीक है, तो डेंसिटी का क्या रिलेशन क्या फॉर्मूला आ गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो और हमें बताइएगा फिर वैल्यू क्या आती है, राइट। सो एक यूनिट से हम दूसरे यूनिट सिस्टम को डेराइव कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, इस वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है बेटा यूनिट सिस्टम आपका क्या है, ठीक है, और कैसे डिफरेंट पैरामीटर्स की आपकी यूनिट्स क्या क्या हैं। वॉल्यूम के यूनिट्स हो गए, प्रेशर के यूनिट्स हो गए, टेम्परेचर के यूनिट्स हो गए। एक का दूसरे से रिलेशनशिप आपको ज़रूर पता होना चाहिए ताकि आप कन्वर्ट कर सकें वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ओके, थैंक यू।